So in the last class, what we have studied is we have studied about flat slab, and with the definition of flat slab, what we have understood is a flat slab is just a reinforced concrete slab which is supported directly on columns without beams. So we have studied about the four types of flat slabs. Then we have studied a general terminology related with flat slab, that is what is column strip, middle strip and panel. Then we have studied various IS code provisions. And what I have mentioned is all these provisions are from IS 456. No need to remember anything. Thickness of flat slab, the minimum thickness to be adopted is 125 mm, and effective depth ratio for control of deflection are also in accordance with IS 456. Then we have studied about the layout, how the layout should look like. Then we have studied about the drops, what are drops, column heads, and how can we analyze a flat slab. There will be two methods. One will be direct design method and another will be equivalent frame method to design or analyze a flat slab. Then in direct design method, we have studied a few points, and in equivalent frame method, we have studied a few points like bending moment distribution and all. And all these points were from IS 456. Now coming to the question number 1. We'll take today question number 1. Write down this question. The question says a hall of 25 meter into 39 meter is constructed and a flat slab is to be provided. Plan the geometry of the slab with rectangular panels. Use M20 concrete and Fe415 steel. So the question says we are given a hall whose dimensions are 25 meter into 39 meter. That we have to construct, for which we have to construct, and a flat slab is to be provided over it. Just provide the geometry of the slab with rectangular panels. Use M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. The first step that you do is write down the given dimension of the floor. The given dimension of the floor is 25 meter into 39 meter. Next, what we have to do is we have to provide the flat slab supported on the columns and drop panels. अब हम क्या करेंगे, फ्लैट स्लैब को प्रोवाइड करेंगे. तो पहले एक स्टैंडर्ड स्टेप है, हम क्या करेंगे, पैनल्स बना देंगे. पैनल्स की डायमेंशन क्या बना देंगे, नॉर्मल स्टैंडर्ड डायमेंशन आप बना दोगे 5 मीटर इंटू 5 मीटर की. अब देखो, अगर आपने 5 मीटर इंटू 5 मीटर की डायमेंशन की पैनल बनाए तो अब कैसा अरेंजमेंट आपका बनेगा. पहले आप डायमेंशन को माइंड में रख लो. डायमेंशन क्या है मेरी, 25 मीटर इंटू 39 मीटर. इसको दिमाग में रखा. 25 मीटर इंटू 39 मीटर को अगर हम ब्रेन में रखें और इस डायग्राम को एनालाइज करें, कीपिंग इन माइंड कि मेरे पर डायमेंशन ऑफ फ्लोर क्या है, 25 मीटर इंटू 39 मीटर. अच्छा, अगर मैं 25 मीटर को यहाँ से इस डायमेंशन में एक रेक्टेंगुलर स्लैब में डिवाइड करूँ तो 5-5 के बैठ जाएंगे, 5 5 5 5 5. ठीक है, 25 हो गया. अब 39 मीटर को अगर यहाँ करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 6 टाइम्स, और लास्ट में अगर मैं 4 मीटर का एक पैनल की डायमेंशन कर दूं तो ये मेरा 39 हो जाएगा. इसमें कोई प्रॉब्लम. अगर मैं इसमें लास्ट वाले पैनल की डायमेंशन 4 कर दूं, बाकी सारे 5 के रखूं और यहाँ पे सारे 5 के रखूं, तो ये मेरा 25 इंटू 39 मीटर की पूरी ज्योमेट्री बन जाएगी. हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी स्लैब को छोटे छोटे पैनल्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, छोटे छोटे पैनल्स में डिवाइड करते हैं और फिर उन पैनल्स की एनालिसिस करते हैं. इस तरीके से हम फ्लैट स्लैब की ज्योमेट्री बनाते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, 25 मीटर इंटू 39 मीटर गिवन था, 25 मीटर इंटू 39 मीटर. तो एक साइड से हमने 5-5 मीटर के पैनल की एक ही डायमेंशन बिठा दी, दूसरी साइड से बिठा दी, और ये तब बैठेगी जब ये लास्ट में क्या होगा, जाके 4 मीटर. क्लियर, इतना सबको समझ में आया. द होल स्लैब इनटू स्मॉल पैनल्स एंड देन वी विल एनालाइज द स्लैब लाइक दिस. एक साइड से हमारी डायमेंशन हमें 25 इंटू 39 की करनी थी, तो एक साइड से हमने 5-5-5 मीटर के कर दिए, तो ये मेरे क्या बन गए. अब अगर आप इसको देखो, इफ यू लुक क्लोजली, तो ये जो मेरा पोर्शन है, ये मेरा एक पैनल है, ये 5 का और ये 5 का, ये दिस इज वन पैनल, दिस इज वन पैनल. क्लियर, ऐसे ही एक एक करके पैनल है. तो मैंने पूरी स्लैब को क्या किया, पैनल्स में डिवाइड कर दिया. क्लियर,
और यहाँ पे क्योंकि 39 मीटर रखना था तो मैंने लास्ट वाले को 4 कर लिया। तो इस वाली लाइन में पैनल्स की डायमेंशन क्या होगी, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। बाकी सारे पैनल्स की डायमेंशन क्या है, 5 इंटू 5। इतना क्लियर, आ जाओ। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन द कॉलम्स एंड ड्रॉप पैनल्स। तो पैनल की डायमेंशन हमने क्या लिख दी, कुछ पैनल्स हमारे 5 इंटू 5 के हैं एंड कुछ पैनल्स हमारे 5 इंटू 4 मीटर के हैं, जो 5 इंटू 4 मीटर्स के हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम करेंगे। हमें पता है कि पूरी फ्लैट स्लैब में हम क्या करते हैं, सारा का सारा काम कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप के टर्म में करते हैं। मतलब हम कुछ फ्लैट स्लैब के पोर्शन को कॉलम स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं, कुछ को मिडिल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कॉलम स्ट्रिप की, तो 5 इंटू 5 मीटर के पैनल की अगर हम बात की जाए तो उसमें कॉलम स्ट्रिप के लिए हमारा क्या होता था, विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप हमारी होती है, क्या लेनी होती है हमें, 0.25 ऑफ L1। L1 इज डायमेंशन ऑफ कॉलम स्ट्रिप, वन डायमेंशन ऑफ कॉलम स्ट्रिप। तो वन डायमेंशन क्या कॉलम स्ट्रिप की क्या है, 5। तो 0.25 इंटू 5 क्या हो गया, 1.25 मीटर कॉलम स्ट्रिप की विड्थ मिल गई। देन लेंथ ऑफ कॉलम स्ट्रिप विल बी 0.25 ऑफ L2। इस कॉलम स्ट्रिप में पहले पैनल में हमारा 5 इंटू 5 है, तो L1 भी 5 करना है और L2 भी क्या है हमारा, L1 इज ऑल्सो 5, L1 is also 5 and L2 is also 5। L1 भी 5 है और L2 भी 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ कॉलम स्ट्रिप भी क्या हो जाएगी, 0.25 इंटू 5 इज इक्वल टू 1.25 मीटर। एक 5.5 क्रॉस 5 के पैनल के लिए आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन कॉलम स्ट्रिप की। अब पूरी की पूरी फ्लैट स्लैब में जितने भी 5x5 के पैनल लगे हुए हैं कॉलम स्ट्रिप में, सबके लिए ये कैलकुलेशन कॉमन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ लेंथ ऑफ ये 5x4 पैनल के लिए। 5x4 के पैनल में आ जाएंगे तो L1 मेरा कितना है, 5x4 के पैनल में आ जाएंगे। अगर हम 5x4 के पैनल में आ जाएंगे तो मेरा L1 कितना हो जाएगा, 5 और L2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसके हिसाब से आप पुट करो, 0.25 इंटू 5, 1.25 मीटर विड्थ आ गई और लेंथ ऑफ कॉलम स्ट्रिप क्या आ गई मेरी, 0.25 इंटू 4, 1 मीटर आ गई। ठीक है, अब हमने कॉलम स्ट्रिप की कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज मिडिल स्ट्रिप, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ मिडिल स्ट्रिप। अब मिडिल स्ट्रिप की कैलकुलेशन जो आप करोगे, मिडिल स्ट्रिप की कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, हाफ ले लेंगे। जैसे 5 मीटर का पैनल है, जो मिनिमम डायमेंशन है उसका हाफ ले लो। जैसे 5x5 है तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर। एंड 5 इंटू 4 मीटर के पैनल में 4 छोटा है तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 मीटर। तो मिडिल स्ट्रिप की कैलकुलेशन होगी, मिडिल स्ट्रिप की कैलकुलेशन एंड कॉलम स्ट्रिप की कैलकुलेशन पूरे के पूरे इसके लिए हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आ जाओ आगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है इसमें, थिकनेस ऑफ स्लैब का। अब थिकनेस ऑफ स्लैब की बात की जाए, थिकनेस ऑफ स्लैब इज कंट्रोल्ड कैलकुलेटेड बाय कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट इज L/D वैल्यू। ठीक है, L हमारा 5 है, ठीक है, L हमारा 5 है। तो ड्रॉप पैनल्स आर प्रोवाइडेड सो द L/D वैल्यू इज गिवन एज according to our code KT is the modification factor and L/D value will be 26 into KT। L/D value will be 26 into KT। तो थिकनेस ऑफ स्लैब में आप इस तरीके से स्टेप लिखोगे। सबसे पहले थिकनेस ऑफ स्लैब को लिखोगे इज कैलकुलेटेड बाय कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन L/D वैल्यू एंड L/D वैल्यू हमारी होती है 26 into KT फ्रॉम IS कोड। KT इज द मॉडिफिकेशन फैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू AST। KT की वैल्यू AST की कंपेरेबल निकालोगे, मॉडिफिकेशन फैक्टर का टेबल होता है हमारा IS कोड में, उसके रिस्पेक्ट में। अच्छा, अज्यूम किया हमने 0.2% स्टील है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने KT की वैल्यू 1.5 ले ली। ठीक है, अब हमारा ये स्टेप भी कॉमन रहेगा, तो यहाँ से L/D इक्वल्स टू 26 इंटू 1.5, तो D की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी। L हमारा क्या है, डायमेंशन 5 मीटर है, 5 मीटर को mm में लिख दो तो कितना हो गया, 5000 मीटर। 5000 बाय 26 इंटू 1.5, D नियरली हमारा कितना निकल के आ गया, 132 mm। ठीक है, एक बार पूरा समझ लेते हैं फिर डाउट लेते हैं। ठीक है, D हमारा कितना आ गया, 132 mm। आगे हम चलते हैं, क्या कह रहा है, हैंस प्रोवाइडिंग D 132 नियरली mm आ गया। अब हम उससे थोड़ा ज्यादा D प्रोवाइड कर लेंगे, स्मॉल d उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड कर लेंगे। कितना हमने प्रोवाइड कर लिया इफेक्टिव डेप्थ। अब क्या कह रहा है कि हैंस प्रोवाइडिंग D अ लिटिल बिट मोर, हमने प्रोवाइड कर लिया 150 mm। तो 150 mm हमने ये प्रोवाइड कर लिया। अब
टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी हमारी 150 mm का इफेक्टिव डेप्थ, प्लस हमने 20 mm का क्लियर कवर ले लिया और 20 mm का डाया ऑफ बार माना। 20 mm का हमने क्लियर कवर ले लिया, 20 mm का हमने डाया ऑफ बार माना, तो हमारी टोटल डेप्थ क्या होगी? टोटल डेप्थ हमारी होगी कैपिटल डी। कैपिटल डी इज टोटल डेप्थ, दिस विल बी इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर सीसी, क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ बार बाय 2, डाया ऑफ रीइंफोर्समेंट बार बाय 2। तो हमने क्या किया इसमें? कैपिटल डी क्या ले लिया? कैपिटल डी वी हैव टेकन इज 150 प्लस 20, क्यों 20 क्लियर कवर ले लिया एंड 20 बार का डाया, तो 20/2 कर लिया 10, तो कैपिटल डी हमारा कितना निकल के आ गया? 180 mm। ये हमने थिकनेस ऑफ स्लैब की कैलकुलेशन हम इस तरीके से करेंगे। वी विल डू थिकनेस ऑफ स्लैब कैलकुलेशन इन ऑल न्यूमेरिकल्स लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे ड्रॉप पैनल निकालने हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट ड्रॉप पैनल्स। अब ड्रॉप पैनल्स की बात की जाए, ड्रॉप पैनल्स की बात की जाए तो थिकनेस प्रोवाइडेड इन ड्रॉप पैनल्स, थिकनेस प्रोवाइडेड इन ड्रॉप पैनल्स हम क्या लेंगे? मिनिमम हमने ले ली 100 mm। फॉर इंस्टेंस थिकनेस प्रोवाइडेड इन ड्रॉप पैनल्स वी हैव टेकन एज 100 mm। थिकनेस प्रोवाइडेड इन ड्रॉप पैनल्स वी हैव टेकन एज 100 mm इन अकॉर्डेंस विद IS कोड। अब हमने अगर 100 mm की थिकनेस प्रोवाइड की ड्रॉप पैनल में, मिनिमम थिकनेस प्रोवाइड की, तो मिनिमम डायमेंशन फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम हमारी होगी L1/6 और L2/6। ठीक है, अब L1/6 या L2/6 करके एक बार चेक करते हैं। अब L1/6 करके चेक किया तो 5/6 0.83 मीटर आ गया। ठीक है, पहले पैनल में तो L1 और L2 सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बात की, हैंस प्रोवाइड अ लेंथ ऑफ 0.9 मीटर, 0.83 मीटर आ गया, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लो इसका। मिनिमम डायमेंशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलम आपका 0.83 मीटर आ गया, इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड कर लो। कितना प्रोवाइड कर लिया? 0.9 मीटर ऑन ईच साइड ऑफ कॉलम। तो हमारी 0.9 मीटर ईच साइड ऑफ कॉलम प्रोवाइड की, कॉलम की हर साइड में 0.9 मीटर प्रोवाइड की, तो पूरे दो कॉलम के कितनी हो गई टोटल हमारी? 0.9 टू 0 डबल हो गई, कितनी होगी? 1.8 मीटर। तो एक पूरे ड्रॉप पैनल की डायमेंशन हमारी कितनी बन गई? 1.8 मीटर। 1.8 मीटर मेरी बन गई ड्रॉप पैनल की डायमेंशन। ठीक है, अब 1.8 मीटर मेरे ड्रॉप पैनल की डायमेंशन बन गई एक साइड से, तो पूरा ड्रॉप पैनल मेरा कितना बन गया? 1.8 मीटर का। ये आपको क्लियर ऐसे होगा, ठहरो। अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की, फॉर इंस्टेंस ये मेरा कॉलम है। ठीक है, ये मेरा कॉलम है। अब कॉलम की लेंथ के अराउंड हमने 0.9 मीटर ईच साइड पे प्रोवाइड किया। ठीक है, ड्रॉप पैनल ईच साइड पे प्रोवाइड किया 0.9 मीटर का। तो अब ये थोड़ा एक्सीड हो जाएगा, 0.9 मीटर ईच साइड पे प्रोवाइड किया, तो ये हो जाएगा मेरा ऐसे 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर का। अभी आगे हम इसको क्रॉस सेक्शनल डायग्राम से थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठहरो। अब अगर हम एक्सटीरियर कॉलम्स पे आ जाएं, इफ वी गो टू एक्सटीरियर कॉलम्स, तो देखो वहां पे क्या कह रहा है? वहां पे कह रहा है कि L/6 करा हमने। ठीक है, अब दूसरी एक्सटीरियर कॉलम्स कौन से हैं? वो वाले कॉलम जो 5/4 के पैनल के बीच में आ रहे हैं। तो वहां पे क्या हो गया मेरा? 4/6 नियरली 0.7 आ गया। तो डायमेंशन ड्रॉप पैनल की हमने क्या ले लिया? एक साइड से 0.9 और एक प्लस 0.7 और दूसरी साइड से 0.9 प्लस 0.9। क्लियर? तो ये क्या हो गया? 1.6 मीटर इंटू 1.8 मीटर। सिमिलरली ये आपको कैसे आ गया था? 0.9 प्लस 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.9, इतना आ गया। डायमेंशन ऑफ ड्रॉप पैनल फॉर एक्सटीरियर राइट कॉलम्स भी निकाल दिया। इतना निकालने के बाद अब आप लोग डायग्राम बनाओगे और इस डायग्राम को आप समझोगे। देखो इस डायग्राम, इस तरीके से ज्योमेट्री आप बनाओगे। तो ज्योमेट्री में हमें क्या क्या दे रहा है? सबसे पहले तो आप ज्योमेट्री बनाना है इसमें मेन। पहले तो 25 मीटर का ये हमने ड्रॉ किया और ये 39 मीटर के ड्रॉ किए। 5, 5, 5 और ये 4, 4 के पैनल बनाए। अब आ गई बात ड्रॉप पैनल्स की। अगर आप किसी एक को उठा लो, फॉर इंस्टेंस ये मेरा कॉलम है मेरा। ठीक है, तो ये कॉलम के यहाँ पे मैंने ये 0.9 मीटर यहाँ से रखा, 0.9 मीटर यहाँ से रखा। ठीक है, अगर कॉलम के यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये कॉलम है मेरा। ठीक है, कॉलम के अगर हमने 0.9 मीटर एक तरफ से रखा, 0.9 मीटर रखा, 0.9 मीटर रखा, तो ये पूरा कितना हो गया? 1.8 मीटर हो गया। तो 1.8 मीटर क्रॉस 1.8 मीटर का मेरा कॉलम
कि ये चारों तरफ से ड्रॉप आ गया। क्लियर, ये मेरा 1.8 मीटर का ड्रॉप आ गया यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर हम इसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट कॉलम एट दिस एंड, इफ वी टॉक अबाउट कॉलम एट दिस एंड, तो यहाँ पे मेरा ड्रॉप कितना आ जाएगा 4 मीटर वाले में 1.86 मीटर इंटू 1.8 मीटर, और ये वाला ड्रॉप ऐसे। तो इस तरीके से आप अपनी डायमेंशन बता दोगे। और दूसरी चीज आप क्या मेंशन करोगे इसमें, ये आपका स्पेसिंग, ये जैसे ये 1.25 मीटर है, ठीक है, और ये जहाँ 4 का आ रहा था तो ये कितनी हो जाएगी 1 मीटर इंटू 1.25 मीटर। यहाँ पे ये कितनी है हमारी 1.25 मीटर 1.25 मीटर। कॉलम स्ट्रिप और मीटर स्ट्रिप की कहानी आप बता दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज हाउ यू डू दिस न्यूमेरिकल। सो फर्स्ट कम टू दिस स्टेप। सबसे पहले डायमेंशन लिखो, पैनल डायमेंशन सेट करो, कॉलम स्ट्रिप की कैलकुलेशन करो, मिडल स्ट्रिप की थिकनेस स्लैब की, ड्रॉप पैनल की, और डायग्राम ज्योमेट्री बना दो। Noted this much? Write down the question. A hall of 30 meter into 42 meter is to be constructed. And a flat slab is to be provided. Plan the geometry of the flat slab. With rectangular panels. With rectangular panels. Use M20 concrete and Fe415 steel. Solve the question. First step, write down the dimension of the floor. So write down about panel dimensions.
then calculate about column strips, calculate for middle strip, then calculate for thickness of slab, then calculate about drop panels. After it, draw the geometry of the flat slab. After it, draw the geometry of the flat slab.